Hello students, I am here to teach you biology chapter 6 life processes. In the previous classes, you have already learned about the plant nutrition. So today I will cover a new topic, that is nutrition in human beings. As you already know that human beings follow holozoic nutrition, in which the food is firstly ingested, digested, and then finally get absorbed by the walls of the intestine. Nutrition in human beings takes place through parts like mouth, stomach, small intestine, large intestine, etc. First, the food is ingested. Now the question arises, what is ingestion? Now here we can see the first part is mouth. Through mouth, the intake of food takes place. We can see here, intake of food takes place through mouth. So, what is ingestion? Ingestion means taking in of food. The food can be in solid form or in liquid form. The two things present inside the mouth are teeth and tongue. The function of teeth is to break the food into smaller pieces. Means the teeth present inside the mouth will break the food into smaller pieces. Then the tongue present inside the mouth will help in tasting. टंग में हमारे कुछ टेस्ट बड्स होते हैं that is helping in tasting the food. Tongue also helps in rolling the food. Rolling means making a ball like structure. टंग जो है फूड को एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में फॉर्म कर देता है. इससे क्या होता है, फूड कैन ईजिली पास थ्रू द माउथ. Now the third thing present inside the mouth is salivary glands. Salivary glands produces an enzyme called as saliva. What is saliva? Saliva is a biological catalyst, or we can say a biological enzyme which converts the starch into simple sugar. Salivary glands एक enzyme produce करता है. That enzyme is called as a salivary amylase. Salivary amylase का function क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. व्हेन यू च्यू चपाती फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यू विल फील दैट द चपाती विल अपीयर टू बी स्वीटर. एक मीठा मीठा सा फील होता है खाने में, हमको एक टेस्ट आता है मीठा मीठा सा. क्यों? क्योंकि चपाती कंटेन्स स्टार्च. जब आप चपाती खाते हो, रोटी खाते हो, बहुत देर तक आप च्यू करते हो, तो द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ विल कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर. इसलिए हमको हल्का सा मीठा मीठा सा लगता है उसमें. ठीक है. देन फ्रॉम द माउथ द फूड देन गोज इनटू द स्टमक. अब ये फूड माउथ से स्टमक में कैसे जाता है? देयर इज अ लॉन्ग पाइप, यू कैन सी हियर, देयर इज अ लॉन्ग पाइप विच connects the mouth to the stomach. This long pipe is called as a esophagus, or it is also called as a food pipe. Food pipe or esophagus is the same thing. The food from the mouth goes inside the stomach through peristaltic movement. Now the question arises, what is peristaltic movement? इधर आप देखोगे, ईसोफेगस में फूड जाता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक. मीन्स ईसोफेगस इज अ लॉन्ग पाइप विच कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. Peristaltic movement is a movement
of muscles present inside the food pipe. तो by contraction and relaxation the food then passes over the food pipe. कैसे होता है देखो, यहाँ पे एक ऐसे करके हम देखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे करके ये फूड है, मान लो फूड है, तो बाहर से एक मसल्स जो होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, अंदर से रिलैक्स करती हैं. तो ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप. तो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? Peristaltic movement is the contraction and relaxation of the muscles to pass the food from the mouth to the stomach. तो फूड माउथ से स्टमक में ईसोफेगस के थ्रू अंदर एंटर कर गया. स्टमक में फूड आया तो स्टमक, व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन एंड इट एक्सपेंड्स व्हेन द फूड एंटर्स इन इट. जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है, स्टमक एक्सपैंड कर जाता है और फूड का डाइजेशन यहाँ शुरू हो जाता है. देयर आर सम ग्लैंड्स प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक, लाइक here it is written, it is gastric gland. Gastric gland secrete gastric juices. Gastric juice contains HCl, pepsin and mucus. इस स्टमक एरिया में हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है. गैस्ट्रिक जूस होता है. गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. हमारा फूड कहाँ पे है? स्टमक में आ गया. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस? HCl का मेन फंक्शन होता है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. स्टमक का जो हमारा मीडियम होता है, जो टोटल मीडियम होता है वो एसिडिक होता है. ठीक है, अब एसिडिक क्यों होता है मैं भी आपको बताती हूँ. सेकेंड फंक्शन ऑफ HCl इज टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड. फूड में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो उसको मार देता है. मीन्स इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द फूड. HCl का फंक्शन क्या हो गया? फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ HCl इज टू मेक द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक. सेकेंड फंक्शन इज to kill the harmful bacteria which is present inside the food. ठीक है. second enzyme present in gastric glands or gastric juice is pepsin. What is the function of pepsin? First thing is pepsin only works when there is an acidic medium. Means pepsin works in the acidic medium. HCl का फंक्शन यही होता है कि HCl makes the medium acidic. अब pepsin acidic medium में ही एक्ट करेगा. अब पेप्सिन विल ब्रेक द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स में इसको कन्वर्ट कर देगा. प्रोटीन्स जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारे फूड में प्रोटीन्स इनटेक होता है, उसको वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. ठीक. थर्ड थिंग प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक इज म्यूकस. व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस देखो क्या होता है. स्टमक में जब HCl प्रेजेंट है, सिंस HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड यू नो, तो अगर HCl स्टमक में प्रेजेंट होगा तो इट विल हार्म द स्टमक. हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस जो है एक लाइनिंग सा बना लेता है स्टमक पे. अब म्यूकस अगर लाइनिंग बना लेगा तो देयर विल बी नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द HCl एंड द वॉल्स ऑफ द स्टमक. बीच में एक म्यूकस की लेयर आ जाएगी स्टमक पे, तो HCl और स्टमक में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक, समझ में आ गया. मीन्स स्टमक में हमने क्या पढ़ा? स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन्स रिलीज गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. फंक्शन ऑफ HCl is, what is the function of HCl? HCl makes the medium एसिडिक. स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक कर देगा. और सेकेंड फंक्शन है HCl का, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द फूड. जो भी हमारे फूड खाते हैं उसको वो हार्मफुल बैक्टीरिया उसका किल कर देता है. सेकेंड वन इज पेप्सिन. द एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक इज पेप्सिन.
function of pepsin is to convert the proteins into amino acids. Proteins present inside the food get converted into amino acids in the presence of enzyme pepsin. पेप्सिन के प्रेजेंस में ही वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है. अच्छा, पेप्सिन ओनली वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम, इसलिए HCl यहाँ पे स्टमक में प्रेजेंट होता है टू मेक द मीडियम एसिडिक. ओके. फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकस. म्यूकस की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. नाउ फ्रॉम द फूड द स्टमक देन एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड स्टमक से फिर कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन. Two intestines are there, small intestine, large intestine. The name large intestine doesn't means that it is large. Large intestine means ये होता है कि the large intestine is thick, somewhat 6 centimeter in measure. तो ये थोड़ा thick होता है. Small intestine ये क्या होता है? ये साइज में तो लेंथ में ज़्यादा बड़ा होता है, बट इट इज़ वेरी थिन. तो हम लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है. इट इज़ वेरी थिक. फर्स्ट द फूड एंटर्स फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर हुआ तो वहाँ पे क्या था? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मीन्स द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के आप ऊपर देख रहे होगे, यहाँ पे एक ऑर्गन है लिवर. लिवर का फंक्शन होता है, लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स. लिवर में दो थिंग्स सिक्रीट होते हैं, दैट इज बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स. ये दो चीज़ होते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स? Function of bile juice and bile salts, here we can see. Here we can see bile juice, it makes the food alkaline. बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है कि ये फूड को अल्कलाइन करता है. जो फूड हमारे पास इंटेस्टाइन में जो आ रहा है, दैट फूड इज़ एसिडिक. क्यों? क्योंकि बिकॉज जो स्टमक में फूड था वो एसिडिक था. वही फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको मीडियम अल्कलाइन करना है. तो बाइल जूस मेक्स द मीडियम अल्कलाइन और फूड अल्कलाइन. बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लिवर सिक्रीट करता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट? इट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स. मीन्स जो भी हमारे ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोब्यूल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है. मीन्स इट कन्वर्ट्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. क्योंकि अगर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स होंगे तो एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे फिर जल्दी से डाइजेशन होगा. ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन मीन्स, इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर वन. दिस इज कॉल्ड एज अ इमल्सिफिकेशन. यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होगे गॉल ब्लैडर भी एक ऑर्गन है. लिवर के पास में एक गॉल ब्लैडर है. गॉल ब्लैडर, द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर द बाइल जूस एंड सॉल्ट. जो भी बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है लिवर, वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है. ठीक है. ये जो ये ग्रीन कलर का ऑर्गन है, दैट इज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स द बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. जब भी ज़रूरत होती है ये अपना बाइल जूस और बाइल सॉल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर देगा. ठीक है. फिर a yellow colored organ is present here. You can see pancreas. This is called as a pancreas. It is a yellow colored organ which secrete two enzyme, trypsin and lipase. ये दो एंजाइम सिक्रीट करता है. ये स्पेलिंग ट्रिप्सिन की होगी TRYPSIN. ठीक है. ट्रिप्सिन एंड
लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है? अब हमारे पास जो फूड आया वो मेनली क्या है? प्रोटीन्स होंगे और फैट्स होंगे, यही तो होते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यही फूड होते हैं, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। जो बचा हुआ स्टमक में, ये काम कौन कर रहा था? ये काम स्टमक में एंजाइम पेप्सिन कर रही थी, ठीक है। ये पेप्सिन स्टमक में क्या कर रही थी? कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब अगर रिमेनिंग प्रोटीन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर कहीं से बची हुई प्रोटीन्स है जो रह गई है, इफ इट कम्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, it gets converted into amino acids with the help of enzyme trypsin, ठीक। अब सेकेंड एंजाइम इज लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? जो फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, उन पे एक्ट करेगा लाइपेज। मीन्स द फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज, ठीक। कौन कौन से एंजाइम्स आज हम लोग पढ़े? पेनक्रियाज से दो एंजाइम्स रिलीज हुए, दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू अमाइनो एसिड्स। Trypsin only acts in the alkaline medium, while the pepsin present inside the stomach, it acts in the acidic medium, ठीक। Lipase present inside the small intestine converts the fats into fatty acid and glycerol. So the starch present inside the food gets converted into sugar or glucose in the mouth, ठीक है। जो भी स्टार्च हम खाए थे, सबसे पहले स्टार्च पे कौन सा एंजाइम एक्ट किया था? सलाइवरी अमाइलेज। स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। शुगर और ग्लूकोज इज द सेम थिंग। Fats that is present inside the small intestine gets converted into fatty acid and glycerol in the presence of enzyme lipase, ठीक है। Proteins that is present in the food will get converted into amino acids with the help of both the enzyme pepsin and trypsin. Pepsin is present inside the stomach while trypsin is present inside the small intestine, ठीक। अब डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड? फूड तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? द फूड मॉलिक्यूल्स विच इज डाइजेस्टेड शुड गो टू द ब्लड वेसल्स सो दैट इट कैन गिव एनर्जी और रिपेयर द सेल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। जो भी हम फूड खाते हैं उसका मेन फंक्शन यही होता है, इट गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प्स इन ग्रोथ और इट रिपेयर्स द डैमेज सेल्स। तो फूड तो अब डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। फूड तो अब डाइजेस्टेड हो गए, पर इन डाइजेस्टेड फूड को हर एक सेल्स में जाना है so that it can gives us energy. So हम यहाँ small intestine में देखेंगे कि there are numerous small finger like projections. आप देखोगे यहाँ पे ऐसे करके numerous small finger like projections होते हैं, ऐसे करके। ये क्या होते हैं? ऐसे हमारी जैसे फिंगर्स होती हैं, उस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट। These increase the surface area of absorptions. अब जितना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। These villi will supplied with the blood vessels. इस विलाई में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इट विल
सप्लाइड द फूड टू द ब्लड वेसल्स. जो भी हमारा फूड डाइजेस्टेड है ये विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में आ गया. ब्लड वेसल्स विल टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ब्लड वेसल्स के बाद फिर वो हर एक सेल्स में पहुंच जाएगा. यहाँ ये विलाई है, विलाई से ब्लड वेसल्स है विलाई में. विलाई विल एब्जॉर्ब द फूड एंड देन pass it to the blood vessels. Through blood vessels the food is passed through each and every cell of the body. तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है उसी फूड से, और या फिर रिपेयर होते हैं. जो भी हमारे सेल्स डैमेज हो चुके हैं वो फिर रिपेयर होते हैं. ठीक, समझ में आ गया. ठीक. अनदर पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन द फूड देन गोज इनटू द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो दैट इज़ यूज फॉर गिविंग एनर्जी और फॉर रिपेयरिंग द डैमेज सेल्स, बट देयर आर सम अनएब्जॉर्ब्ड फूड विच इज़ सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं. वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. इसमें से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. द अनडाइजेस्टेड पार्ट और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ egestion. द रिमूवल ऑफ वेस्ट or the removal of unabsorbed food from the body through the anus is called as a egestion. Now हम यहाँ देखेंगे 2-3 टर्म्स आते हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन egestion. What is ingestion? Ingestion means taking in of food. इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड. जो भी हम फूड खाते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन. What is then digestion? Digestion is the breaking down of complex food molecules into simpler ones. What is digestion? Breaking down of complex food molecules into simpler ones. This is called as a digestion. Then what is assimilation? Or first then absorption. Assimilation or absorption means the food that is digested is used or it is absorbed by villi and then pass it to each and every cell of the body to gives us energy. हम वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. This is called as a assimilation of food. Assimilation is the absorption or after absorption of food by the villi, it gives the food then passes into the each and every cell of the body to give us energy. This is called as a assimilation. Food to completely digest हो चुका है. The unabsorbed food will then sent to the long intestine, where the long intestine will absorb more and more water from this food material. The rest of the undigested material will removed from the body. This process is called as a egestion. Now this is a flow chart showing the total process or the whole process of digestion of food. Here we can see in mouth, salivary glands secrete saliva. Saliva contains salivary amylase or ptyalin. Salivary amylase or ptyalin is the same thing. Salivary amylase or ptyalin will convert the starch present inside the food into sugar. The two things present inside the mouth is teeth and tongue. Function of teeth is it helps in grinding the food or chewing the food. Teeth helps in chewing or grinding the food. Tongue present inside the mouth will helps in tasting the food. Food taste करने में help करता है. It also helps in rolling the food. Means roll, it makes a ball like structure. Tongue makes a ball like structure that is called as a bolus.
This ball-like structure of food is called as a bolus. The bolus then passes through the esophagus or the food pipe through peristaltic movement. What is peristaltic movement? The contraction and expansion of alimentary canal or the muscles of alimentary canal is called as a peristaltic movement. The food from the stomach then goes inside the food from the esophagus then goes inside the stomach. Stomach contains gastric juices. Gastric juices mainly contains three things, that is pepsin, HCl and mucus. Function of pepsin is to break down the proteins into amino acids. Function of HCl is to make the medium acidic and to kill the harmful bacteria. A pepsin only works in the acidic medium. Now, what is the function of mucus? Mucus will protect the inner lining of the stomach. Mucus नहीं होगा तो HCl और membrane में direct contact होगा, इससे हमारे स्टमक के वॉल्स को हार्म भी हो सकता है. इसलिए mucus protects the inner lining of the stomach. The food from stomach then passes into the small intestine. Small intestine में liver और pancreas दो organs हैं जो liver secretes bile salts and bile juice, while pancreas secrete pancreatic juice. Bile salts और bile juice का function ये होता है कि bile juice converts larger fat globules into smaller one, while bile salts make the medium alkaline. The pancreatic juice contains two enzymes, trypsin and lipase. Pancreatic juice contains two enzymes, that is trypsin and lipase. Lipase acts on emulsified fat. Emulsified means the smaller fat globules is called as a emulsified fats. So lipase converts emulsified fats into fatty acid and glycerol, while trypsin converts proteins into amino acids. Then the food then passes into the large intestine. What is the function of large intestine? It absorbs the excess water from the undigested food. जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, देर आर सर्टेन फूड्स जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड में से एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. देन अनडाइजेस्टेड फूड then goes out of the body through the anus. This process is called as a egestion. This is the whole process of digestion. In the second topic, we will cover a new topic, that is respiratory system in human beings. Okay, thank you.